basic human aspirations, and right understanding for the fulfillment of those human aspirations. Our next topic is understanding of human being as coexistence of self and body. Now, before we start, first question is, when you see something or when you do something or you think or you desire, can you identify who performs these functions? Excuse me, ma'am. Yes, please. Ma'am, are you sharing any screen? I'm going to share it. Actually, I have joined other device. यहाँ मुझे उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है. It is taking some time. Okay, मेरे ma'am. लैपटॉप में कुछ ऑडियो इश्यू आ गया था तो उससे वो ठीक से कर रहा था, लेकिन आज अपनी जूम पे नहीं कर रहा है वैसे वो, लेकिन ऑडियो करेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं दूसरी कनेक्ट किया है. यस, ट्रांसफर हो गया है, मैं अभी उसको शेयर कर रही हूँ. बताइए आप लोग, हु परफॉर्म्स दीज फंक्शंस? When you see something, when you eat, when you think, who performs these functions? Brain. Ma'am, these are performed by different organs of our body. Like we think through our brain, we eat through our mouth, we see through our eyes. Yes. Okay. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो मैम. इज इट विजिबल? No, ma'am. मैम अभी नहीं. अभी मैम लोडिंग हो रहा है. ओके, हो गया मैम. ठीक है. सो यस, इज इट विजिबल नाउ? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. Yes Which ma'am. screen is there? Which slide is there? Harmony in the human? Yes ma'am. Human being. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, when we eat, when we do, yes, you are correct that our body is performing all these functions. Different organs of our body are involved in these activities. But when we desire something, when we think something, is it our body who performs these functions or something else? Ma'am, our mind. I think Yes, you our may body. say yes, you may say that it is your mind, but actually it is not your mind. It is your self. It is the conscious entity. Basically, human being is the coexistence of these two entities, self and body. Self, that is also called I or consciousness. इसको आप I भी कहते हैं, इसको आप consciousness भी कहते हैं. That I or consciousness is the main doer in overall functioning of this body. Yes, to some extent you are right that mind is also there, because अगर हम इनको बहुत डीप में जाके इनको सेग्रीगेट करें, इनको डिवाइड करें, then we can say that human being is coexistence of 4 components: body, mind, heart, and soul.
लेकिन क्योंकि माइंड, heart is the part of body and mind is there in the soul, because mind को हम क्या मानते हैं? माइंड इज इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस. ठीक है, माइंड को एक अलग से ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारे पास. व्हाट इज माइंड? माइंड इज इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस. सो दैट इज द पार्ट ऑफ सोल. हार्ट, कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी. अब एक हार्ट तो हमारे पास एक ऑर्गन है दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एटसेट्रा, जो भी है, सारे काम उसके हार्ट के होते हैं. बट बिसाइड्स दिस, हार्ट इज ऑल्सो अ कॉन्शियसनेस सेंसिटिविटी. अब एक चीज मुझे बताइए, जैसे आपको दुख होता है तो आपको क्या लगता है कि वो सीधे जो आपका हार्ट है उसको दुख होता है? नो, जो आपके अंदर एक एंटिटी है, कॉन्शियस एंटिटी है, उसको पेन होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई broadly we have divided, or broadly we can say that this human coexistence of two entities, self and body. Now to understand this, we understand their activities and their. So first of all, human being is in coexistence of the body and the self. Body has a familiar shape and structure. ह्यूमन बॉडी सभी को पता है कि एक फेमिलियर शेप है, सभी की दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह, सबका होता है. ठीक है, तो एक फेमिलियर उसकी शेप है. बट द इनर सेल्फ, जो कॉन्शियस आई है, जो सेल्फ है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट, दो इट इज देयर. नाउ इमेजिन इफ दैट सेल्फ इज फ्रॉम द बॉडी, कैन बॉडी परफॉर्म एनी फंक्शन? If we separate this soul from the body, No, ma'am. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी ठीक है? यस मैम. ma'am. हो सकता नेट इश्यू हो, क्योंकि इस तरफ थोड़ा सी नेट की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है. हालांकि मेरी तरफ नेट बिल्कुल ठीक से शो कर रहा है, स्टिल देयर मे बी सम प्रॉब्लम. Just a minute. Okay. Yes. To understand this coexistence of self and body, we have to understand the activities and needs. But before that, answer this: if self is separated from the body, can body perform any function? No, ma'am. No, ma'am. No. And again, if body is not able to do anything, can self fulfill its need? No ma'am. No, ma'am. No, because these two have to work in coordination with each other to fulfill the needs of the body as well as the self. Without self, body is just a dead body, nothing else. And if your body is disabled,
Is your body is not able to do something, other part of your body is, again, self is not able to direct any action. And again, the needs of the self cannot be fulfilled. So for this, these two work in proper coordination. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, to this. So what is human being? Human being is the coexistence of self and body. Now needs of the body. Abhinav. Needs of the body, happiness, and needs, happiness, facilities are the needs of the body, and happiness is the self. Now, if we see needs in context of time, the needs of self are continuous, and needs of the body are. If we see in terms of quantity, again, the self are qualitative because their feelings, they are the emotions, they are the things which give us satisfaction, which give us happiness. So they are qualitative form, qualitative in context. That's why they are in abundance. हम उनको एक लिमिटेड नहीं कह सकते कि मुझे 10 किलो हैप्पीनेस चाहिए या मुझे 10 ग्राम चाहिए. ठीक है. The needs of the body are quantitative. We require them in a limited quantity. For example, आप इसी in time the needs continuous because needs of self are what? Respect, name, fame, satisfaction, joy. And needs of the body are physical facilities. Physical facilities like food, shelter, clothing, etc. अब यहाँ पे आप इस चीज को बहुत अच्छा से एक एग्जांपल से, किसी भी एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल अभी सर्दियों का दे देती हूँ. For the protection of our body, we need woolen clothes. ठीक है. लेकिन क्या वो वुलन क्लोथ्स हमें पूरा साल भर चाहिए? Do we need them throughout the year? No, ma'am. No. No. So this is the temporary need of the body. आप पूरा टाइम वुलन्स में नहीं रह सकते, पूरा टाइम आप कॉटन क्लोथ्स में नहीं रह सकते. So according to the time, according to environment, these physical facilities are required. That's why they are temporary. And if we see in terms of quantity, again, we cannot measure the happiness. We cannot say that मुझे सिर्फ इतनी सी happiness चाहिए या मुझे सिर्फ उतना सा ही नाम करना है और मुझे उतनी सी ही fame चाहिए. ठीक है? Because they are qualitative things. आपको happiness चाहिए, कैसी happiness? True happiness. Real happiness. Not a fake one, not a temporary one. It must be permanent. It must be true. It must be pure. But in case of physical facilities that are the requirements of body, we need them in limited quantity. You cannot put on 2 or 3 jackets. कितना भी ठंड है, आप एक अच्छी, अगर आपके पास एक जैकेट है, आप उसको पहन लेंगे, आप उसके ऊपर दूसरी जैकेट, तीसरी जैकेट आप नहीं पहन सकते. ठीक है. So they are required in limited quantity. For example, food. आपको जितनी भूख है आप उतना ही खाएंगे. Again, there is some quantity, some fixed amount is there that is required by the body. कितनी भी आपकी कोई फेवरेट चीज है,
ठीक है, आपको कोई भी चीज पसंद है, आपको चॉकलेट्स पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, बट देयर इज अ लिमिटेड क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, एंड आफ्टर दैट you are not able to have any more. So the body are separate, needs of self are also separate, and accordingly their requirements in context of and quantity are different. Now we have these questions. Are these needs these needs of different types or of same type? क्या हमारी ये एक ही तरीके की हैं या अलग अलग तरीके की हैं? ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स. आर बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स इम्पोर्टेंट? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए. आर Yes, बोथ ma'am. टाइप्स Yes. इम्पोर्टेंट? यस. Yes, ma'am. क्योंकि Yes. सिर्फ खाना खा के आप नहीं रह सकते. यू नीड हैप्पीनेस एज वेल. व्हेन यू ईट समथिंग यू वांट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट फूड. कोई भी चीज अगर आप खाते हैं तो ऑब्वियसली यू वांट टू हैव सम टेस्ट इन दैट. वो टेस्ट जो आपकी सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ उसको खा के आपको अच्छा लगा. यू वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी. अगेन यू वांट सेटिस्फैक्शन दैट कपड़े आप पहन रहे हैं वो आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं. यू फील satisfied, you feel happy and you get appreciation from जो आपको पसंद है. So both types of needs are important. Are we working to fulfill both types of needs? No. No. ठीक है. कुछ केसेस में yes we can say that we are working, but maximum efforts are being spent in accumulating, in collecting or in fulfilling physical facilities only. What is the priority between the needs of the self and the needs of... Now this is to some extent confusing because priority हमारी दोनों है. If we keep on focusing on the body, we ignore self, and if we keep on focusing on the fulfillment of needs, we may ignore body. लेकिन फिर भी अगर हमें किसी एक की प्रायोरिटी लेनी है, वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ बिकॉज इट इज द सेल्फ दैट एंजॉयज. दैट इज द एंजॉयर. इसको भी बाद में देखते हैं, इसी स्लाइड में थोड़ा आगे आएगा ये. हु इज द एंजॉयर, हु इज द डूअर. नाउ अब आपने ये चीजें इतना तो समझ लिया दैट नीड्स आर डिफरेंट in time, in context of time and in context of quantity. Now how are these needs fulfilled? The needs of the soul or the self are fulfilled by right understanding and right feeling, whereas the needs of the body are fulfilled by physiochemical things. Physiochemical things like food, clothing, shelter, house, and other physical facilities. जो भी आपके पास गैजेट्स हैं, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू कीप योर बॉडी इन अ कंफर्टेबल position. For example, we have fans, we have cooler, we have ACs, we have heaters in summers, we have purifiers, we have ROs. ठीक है. So different gadgets to keep our body in a comfortable position for its betterment and better functioning. Now, the needs of the body cannot be fulfilled by right understanding or right feelings alone. Yes, it is right. You cannot fulfill the needs of the body only by right understanding or right feelings. And the needs of the self cannot be fulfilled by
physiochemical things only. तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों का फुलफिलमेंट अलग अलग है, दोनों की क्वांटिटी अलग है, और दोनों की नेचर दोनों का अलग है, इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम भी अलग है. एक हमें कॉन्टिन्यूटी में चाहिए, दूसरा हमें टेम्परेरी फॉर्म में चाहिए. आपको जिस वक्त भूख लगी खाना चाहिए, लेकिन एक जब आपकी भूख सेटिस्फाइड हो जाती है, यू नीड एनी मोर आफ्टर दैट. हम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. When you feel hungry and प्रॉब्लम है इधर. चलिए अभी मैं दोबारा इसको ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मिनट का टाइम बचा है मीटिंग का. इसके बाद आपको रिज्वाइन करने मैं कोशिश करती हूँ कि तब इसको थोड़ा ठीक करूँ. So both types of needs have to be understood separate, and both types of needs have to be built separately. What is the priority? क्या प्रायोरिटी है आपकी? किस चीज पर आप ज्यादा फोकस करते हैं? How much time and effort is spent for right understanding and right feeling? And how much time and effort is spent for physical facilities? Now your happiness, your satisfaction depends on this understanding. कि कितना टाइम आप किस चीज पर लगाते हैं, and how do you fulfill your needs of the body and needs of the now. इतना आप लोग समझ needs of the body, needs of the self, and how they are fulfilled. They are fulfilled by right feelings and facilities for the body, physiochemical things. Now the activities of self are desire, thought, and expectations, whereas the activities of the body are eating, walking, sleeping, talking, etc. Now tell me, when you eat, you said that your organs of body are doing that work. Is it clear? Again, when you walk, your legs are performing that function. When you are writing, again your hands are involved in that. But when you think, which part of your body is being used? Brain. When you think something, Brain. brain. Yes, you may say it brain, but it is the self. So desire, thoughts, expectations, these are the activities of the self. आप अपने हाथ से या अपने ब्रेन को, अगर आप ये कहते हैं कि वो आपकी बॉडी का फंक्शन है, तो उसको रुक जाना चाहिए कुछ टाइम बाद, लेकिन वो नहीं रुकता है. You keep on thinking all the time. So these activities are also different in nature in context of time, because these activities of desiring, thinking, expecting something, expectations, feelings are continuous in nature, whereas the activities of the body like eating, walking, sleeping are temporary in nature. आप पूरा दिन नहीं खा सकते, पूरा दिन आप चल नहीं सकते, पूरा दिन आप सो नहीं सकते, पूरा दिन आप पढ़ नहीं सकते. ठीक है? But thinking is a process which continues forever. ये अलग चीज है कि आप उस चीज के लिए कॉन्शियस हैं नहीं हैं. अनकॉन्शियसली भी आपके माइंड में, आपके सेल्फ में थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है. यू कीप ऑन थिंकिंग समथिंग. So these activities are of continuously in the self, and these activities of the body which are temporary in nature. कि रिस्पॉन्स क्या है इन एक्टिविटीज का? आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं. इसमें नेक्स्ट सॉरी
Response: knowing, recognizing, and fulfilling. Self, these 4 responses are there. यानी ये 4 चीजें हैं जिनसे हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. एंड इन द ऑफ बॉडी ओनली दीज 2 activities are there: recognizing and fulfilling. Now, how recognizing and fulfilling? Because when you feel hungry, you recognize that your body, आपकी body indicate करती है that it requires some food. You recognize the need of the body and fulfill it. Isn't it? आपको जो भूख लगती है तो वो रिकग्निशन आता है, एक इंडिकेशन आता है, उसके बाद रिकग्निशन यू नीड फूड, उसका भी रिकग्निशन आता है कि आप और कब आपको भूख लगी है. ठीक है. फॉर recognition of the same comes from the body and you act to fulfill that need. आप उसको fulfill करते हैं. होता है ऐसा? नहीं होता है? Yes. ठीक. लेकिन सेल्फ के साथ ऐसा नहीं है. रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग के अलावा सेल्फ में 2 चीजें और हैं: नोइंग एंड एज्यूमिंग. अगर आप इस नोइंग एंड एज्यूमिंग को निकाल दें तो आपकी बॉडी, अगर आपको भूख लगी है तो आपकी बॉडी जो भी आपके सामने है उसको ले लेगी टू फुलफिल द नीड्स. लेकिन ये आपकी सेल्फ है विच नोज यस दिस फूड इज, दिस इज गुड, इसमें कुछ अच्छे न्यूट्रिशन. वहीं पर फिर अजम्पशन आता है दैट दिस फूड आई विल गेट दिस. After getting this food, this will affect my negative or in a adverse way. Avoid करते हैं. ठीक है. So in case of knowing and assuming is also there. लेकिन बॉडी के साथ ऐसा नहीं है. बॉडी के साथ सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज हैं: रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग. अब एक चीज बताइए, अगर कहीं पे थोड़ा सा कुछ कहीं पे आग जल रही है, आपकी बॉडी उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाती है कि वहां पे आग है और आपको उसे बचना है, या आपकी सेल्फ है जो आपको इस चीज के लिए इंडिकेट करती है यस आप उसमें अगर हाथ डालते हैं या आप उस टच कर लेते हैं तो आपका हाथ जलता है, आप उससे पीछे हट जाते हैं, उससे अपने आप को आप सेव कर लेते हैं. Basically, self you. मैम चली गई. मीटिंग एंड कर दो, फिर से ज्वाइन कर लो. अरे फिर से क्यों ज्वाइन करना है यार? बोल दो ना, वॉइस ब्रेक हो रही है. मीटिंग टाइम तो 1 मिनट रह गया ना, आई गेस ज्वाइन करने. 1 अरे घंटे हो मैम तो गई कह क्लास. रही थी कि फिर से ज्वाइन करना है. अबे भाई ये बच्चों की आवाज किसको आ रही है? ये भी खत्म ही होने वाली है. क्लास ही एंड होगा. हेलो.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी क्लियर है बेटा? वॉइस अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me share the slide. Yes. So activities of self and activities of body are different. Activities in the self are desire, thought, selection, imagining, understanding, feelings, dreaming. These are the activities that keep on in our, that keep going on in our self. ये आपके कौन है? शोएब. So these are the activities which keep going on in self all the time. Feelings, feeling, dreaming, understanding, imagining, etc. Now, you tell me, do we need any consent or do we need involvement of any body part in performing these activities? इमेजिनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग. क्योंकि आप अगर कुछ काम कर भी रहे हैं, इवन आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं उस वक्त भी यू कीप ऑन इमेजिनिंग समथिंग और यू कीप ऑन फीलिंग समथिंग, यू कीप ऑन ड्रीमिंग समथिंग. ठीक है? तो आपने अभी कहा कि आपकी कुछ एक्टिविटीज की वो ब्रेन करता है, लेकिन ब्रेन तो आपका पढ़ाई में लगा हुआ है. आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए भी आप कुछ फील कर रहे होते हैं, कुछ ड्रीम कर रहे होते हैं, कुछ इमेजिन आप लोग कर रहे होते हैं. तो वो एक्टिविटीज कहाँ परफॉर्म हो रही हैं? दीज एक्टिविटीज आर बीइंग डन इन सेल्फ. ये सारी एक्टिविटीज सेल्फ में होती रहती हैं एंड दीज आर कंटिन्यूअस ऑल द टाइम. So these are the specific activities which are performed by self and in the self without the involvement of body. Okay? So these are activities in the self. Second category is of those activities which are the activities in which we have to involve both the self and the body. Can you give me any activity where we need the involvement of both self and the body? Any one activity? स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज सारी, दोनों चीजें जरूरत होती है. स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा बेसिक एक्टिविटीज हैं बेटा, जैसे Painting. ठीक है. और बताइए. Studying and meditation. Mental health. Mental health. म्यूजिक. ठीक है, लेकिन उनसे भी ज्यादा बेसिक एक्टिविटीज. ये तो बहुत ठीक है, आपने नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटीज बता दी वेयर वी इन्वॉल्व बोथ अवर सेल्फ, वॉकिंग, सीइंग, ईटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू वॉक यू हैव टू इन्वॉल्व योर बॉडी as well as you get the instructions from self. ठीक है, क्योंकि अगर आपका सेल्फ आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा चलने के लिए, you cannot walk. So these are the activities where we have to involve both the self and the body. Because in the performance of these activities, the decisions and choices are made by the self, and these activities are carried out via our body, because body is the instrument to perform these actions. For thinking, for dreaming, self doesn't require any organ of the body, but for the execution of these tasks, body is required, but it is the self that takes the decision.
now I have to sleep, now I have to eat something, now I have to see something. क्योंकि देख तो आंखें नहीं है आपकी, लेकिन उसका जो मीनिंग है, क्या आप देख रहे हैं, क्या आपको देखने में अच्छा लग रहा है, क्या आप देखना चाहते हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेल्फ. नाउ वी हैव थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी involves those activities which are performed in the body but with the consent and sometimes without the consent of the self. जिसके लिए सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बट सेल्फ की कंसेंट होती है. कुछ में सेल्फ की कंसेंट तो होती है हमेशा उसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट सेल्फ का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट उन एक्टिविटीज में नहीं है एंड सेल्फ कैन नॉट स्टॉप those activities which are performed by the body. For example, digestion, breathing, nourishment, blood flow, heartbeat. These are the activities which are performed by the body with the consent of the self without the involvement of self. तो यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं कि दीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन बॉडी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्फ. कंसेंट का तो होता है, कुछ में नहीं होता, क्योंकि अगर सेल्फ अगर चाहे तो आप ब्रीदिंग को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी और अदर एक्टिविटीज को, फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो या नरिशमेंट है या जो आपकी हार्ट बीट है या डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसको आपकी सेल्फ नहीं रोक सकती. यस, यू कैन थोड़ी देर के लिए आप ब्रीदिंग को जरूर रोक सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं. सो दीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द बॉडी. सो इन दिस वे वी हैव थ्री कैटेगरीज: एक्टिविटीज इन द सेल्फ, एक्टिविटीज वेयर सेल्फ एंड बॉडी बोथ आर इन्वॉल्व्ड, एंड थर्ड, activities of the body with the consent of self. Now, knowing, assuming, recognizing, and fulfilling. These are the things which are there in the, or these are the activities which are there in the self, and in the body only two activities are there: recognizing and fulfilling. जिसका मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, दैट व्हेन अवर बॉडी नीड्स रेस्ट, इंडिकेशन कम्स, वी रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द रेस्ट एंड फुलफिल इट. बट इट इज योरसेल्फ दैट नोज कितनी देर के लिए आपको रेस्ट करना है, किस एनवायरनमेंट में जाके आपको रेस्ट करना है, किस तरीके का रेस्ट आपको रिक्वायर्ड है, इज इट मेंटल रेस्ट और फिजिकल रेस्ट, ठीक है. और उसी के अजम्पशंस आते हैं कि इतनी देर रेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी फिट होगी दोबारा काम करने के लिए, या आपका माइंड फिर से फिट होगा कुछ नया सोचने के लिए या नया करने के लिए, आप अपनी पढ़ाई को फिर से एज्यूम करेंगे, या जो भी आप काम कर रहे हैं, यू विल गेट रेडी फॉर दैट. सो दिस नोइंग एंड एज्यूमिंग, दीज टू थिंग्स आर परफॉर्म्ड बाय सेल्फ बिसाइड्स रिकॉग्नाइजिंग एंड fulfilling. Now, problem comes when there is misunderstanding or there is not coordination between these two. आपकी सेल्फ कुछ और कर रही है, सेल्फ का अजम्पशन कुछ और है, सेल्फ की रियलाइजेशन कुछ और है, लेकिन बॉडी उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करती या बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर एंड डिससेटिस्फैक्शन इज देयर. लेकिन अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन है, यू गेट अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है. अब इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अवर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी और नीड्स ऑफ द बॉडी आर लिमिटेड. क्यों लिमिटेड है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी की नीड्स हैं उसका पैटर्न चेंज होता रहता है. कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज़ आप लोग एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम क्या, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है खाने में,
किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद है, किसी को चॉकलेट, किसी को कुछ और चीज़। सो टेक दैट थिंग। अब जरा सोचिए कि आपको उसको कितनी क्वांटिटी आप उसकी कंज्यूम कर सकते हैं, कितना आप उसको खा सकते हैं। शुरू में आप वो खाएंगे, आपको हालांकि बहुत भूख लगी है और आपको वो आपकी जो भी डिज़ायरेबल है वो आपको मिल जाते हैं। यू फील हैप्पी कि आपको यही चाहिए था और उसी की आपको रिक्वायरमेंट है। सो यू फील हैप्पी, यू आर वेरी वेरी हैप्पी कि अच्छा भूख भी लगी थी और उसके साथ मुझे यही खाने का मन था, वो आपको मिल गया। सो इन द बिगनिंग इट इज़ नेसेसरी फॉर योर बॉडी, क्योंकि आपको भूख लगी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट एंड इट इज़ टेस्टफुल एज वेल, क्योंकि आपको पसंद भी है और टेस्टी भी है। इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। सो इन द बिगनिंग at the first level it is necessary and tasteful. अब आपने उसको खा लिया है, योर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड, वो कंप्लीट हो गई है, वो फुलफिल हो गई है। फिर भी आपको क्योंकि वो चीज़ पसंद है एंड इट इज़ वेरी टेस्टी एज वेल, यू कीप ऑन कंज्यूमिंग सम मोर। आप फिर भी कुछ और खाते रहते हैं। लेवल कौन सा गया है उसका? व्हाट इज दैट लेवल? अननेसेसरी बट टेस्टफुल। अब वो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है वो बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी जो भूख है वो शांत हो चुकी है, वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। बट एज इट इज टेस्टी एंड यू लाइक इट, यू कीप ऑन हैविंग सम मोर। सो इट इज अननेसेसरी बट टेस्टफुल। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद भी आप कुछ और लेना चाहते हैं, कुछ और आप खाते रहते हैं लालच में, ठीक है। या कई बार आपको लगता है कि अच्छा अभी इसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप किसी के यहाँ गए हैं और वहाँ आपको वो चीज़ रखी है आपके सामने और आपकी प्लेट में थोड़ा बच गया, तो आप ज़बरदस्ती आपको कंप्लीट कर उसको फिनिश करना है, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते प्लेट में। तो अब उसका लेवल क्या होगा? अननेसेसरी एंड टेस्टलेस, क्योंकि अब आपको उसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था। दैट इज द थर्ड लेवल। एंड फोर्थ लेवल इज कब? अब वो आपके लिए इनटॉलरेबल हो चुका है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा खा लिया है कि आप उस लेवल पे जा चुके हैं कि वो आपके लिए इनटॉलरेबल है। दैट्स वाई। लेकिन क्या यही चीज़ आपकी नीड्स ऑफ सेल्फ के साथ हो सकता है? क्या यही चीज़ आप हैप्पीनेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि नहीं बस हैप्पीनेस हो गई, इसके अलावा मुझे और ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं चाहिए? इज देयर एनी लेवल? मैम ये जो आपने अभी चीजें कहीं कि मतलब भूख लगनी बंद हो जाती है उसके बाद हम खाते हैं, कि सेल्फ के लिए नहीं हो गई, क्योंकि जो हमारी फिजिकल नीड है नहीं वो तो पूरी हो चुकी ना। नहीं, फिजिकल नीड आपकी पूरी हो चुकी, वो सेल्फ के लिए नहीं है। वो आपको, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपकी बॉडी, आपकी जो आपकी टेस्ट बड्स हैं उनको वो टेस्टी लग रहा है। आपकी सेल्फ तो आपको बार बार मना कर रही है कि नहीं बहुत हो गया, आपने खा लिया पूरा, आपका जो टमी है वो फुल हो चुका, आपकी बॉडी की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो चुकी। तो सेल्फ तो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी टेस्ट बड्स हैं उनको क्योंकि अच्छा लग रहा है, उसको टेस्टी लग रहा है आपकी बॉडी को, तो आप कुछ और लेते रहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो आपकी बॉडी भी मना करने लगती है उसको लेने के लिए, ठीक है। और जो लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल में आपकी बॉडी के लिए वो इंटॉलरेबल हो जाता है, तो आप उसको बिल्कुल ले ही नहीं पाते। सो लेकिन यही चीज़ आप हैप्पीनेस के साथ नहीं कर सकते, यही चीज़ आप रिस्पेक्ट के साथ नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है आपने बस मुझे इतनी रिस्पेक्ट चाहिए थी, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं नहीं ले सकता, इंटॉलरेबल है इसके बाद रिस्पेक्ट, या इसके बाद इतनी हैप्पीनेस मुझे चाहिए थी, इसके बाद हैप्पीनेस मुझे और नहीं चाहिए। इज देयर एनी लिमिट टू दैट? नो। ठीक है। कभी कहा है आपने सक्सेस के लिए कि बस मुझे इतनी सक्सेस चाहिए? कभी देखा है किसी को ये कहते हुए कि बस मुझे इतना ही चाहिए था, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना, मैं आराम से घर बैठ जाता हूँ? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, what is the difference between brain and self? ब्रेन एंड सेल्फ। ब्रेन बेटा बॉडी का ही एक पार्ट है। ब्रेन एक ब्रेन एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। सेल्फ के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन अपने आप में, क्योंकि आप एक चीज मुझे बताइए, सेल्फ है आपकी, आपने कितने लोगों का वो केस सुना होगा ब्रेन डेड, ठीक है।
लेकिन सेल्फ उनका तब भी काम करता रहता है. ब्रेन डेड है, इट मीन्स उनकी जो ब्रेन से जो सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, एक मीडियम है जो सिग्नल्स भेजता है. सेल्फ के जो सिग्नल्स हैं थ्रू ब्रेन, दे आर सेंड टू द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. क्योंकि आपकी सेल्फ सीधे आके आपके हाथ को तो नहीं कहती कि ठीक है आप इस चीज को उठा के खा लीजिए, या ये चीज मतलब आपके रास्ते में आ गई, इसको आप हटा दीजिए पैर से. ठीक है, वो सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? वो सिग्नल्स आते हैं आपके ब्रेन से. सो ब्रेन इज एन इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी का ही एक पार्ट है, बट इट टेक्स डायरेक्शंस फ्रॉम द सेल्फ एंड transmits these directions to the different organs or different parts of the body. मैम ये समझ नहीं आया. समझ नहीं आया बेटा. जो आपकी सेल्फ है, सेल्फ इज ए कॉन्शियस एंटिटी. सेल्फ आपकी एक बिल्कुल एक कॉन्शियस एक अलग चीज है. ठीक है, सेल्फ आपके ब्रेन को इंडिकेशन देती है. अब मुझे चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए. जब आपकी बॉडी, आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, ये सिग्नल आपको कहाँ से आता है? क्या आपकी टमी ये चीज बोलती है कि मुझे फूड चाहिए? नहीं, नहीं, किसकी टमी बोलती है? ये सिग्नल तो आपको ब्रेन से आता है ना. रिलीज होता है मैम. ये सिग्नल तो आपको ब्रेन से आता है ना, कि जो सिग्नल्स हैं वो सारे ब्रेन से आते हैं. लेकिन ब्रेन को वो सिग्नल कहाँ से रिसीव होते हैं? सेल्फ से. रिक्वायरमेंट बॉडी की है. इसलिए मैंने कहा था कि कुछ जो हमारे फंक्शंस हैं वो ऐसे हैं जिनमें बॉडी और सेल्फ दोनों इन्वॉल्व हैं. अब बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको भूख लगी है, तो आपको वो सिग्नल, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है और दोनों को कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, तो ये सेल्फ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सेल्फ टेक्स केयर ऑफ द बॉडी एंड बॉडी टेक्स केयर ऑफ द सेल्फ. तो सेल्फ ने वो सिग्नल लिया, कि सेल्फ ने रिकॉग्नाइज किया कि बॉडी को अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसने ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन अपने काम में लग जाता है. ठीक है, अब उस खाने को जो खाना आप खा रहे हैं उसको एंजॉय कौन कर रहा है? एंजॉय कर रहा है सेल्फ. लेकिन नीड किसकी फुलफिल हो रही है? नीड फुलफिल हो रही है बॉडी की. ठीक है, लेकिन उस खाने को एंजॉय कौन कर रहा है? एंजॉय उसको सेल्फ कर रहा होता है. मैम मन की बातें कर रहे हो क्या? मतलब मन करता है, भूख 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 लगती तो मन हाँ, करता है. मन कुछ हद तक आप उसको कह सकते हैं मन. ठीक है, कुछ हद तक आप उसको मन कह सकते हो, क्योंकि मन और सेल्फ, ये जो मन है आपका, जिसको हम हार्ट कहते हैं, इस उसमें हम इस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको हार्ट बोलते हैं. हालांकि हार्ट आप उसको लेते हैं जो आपके एक अंदर एक बॉडी ऑर्गन है. ठीक है, उसको हम हार्ट कहते हैं, लेकिन वो हार्ट यहाँ पे जो हम मन जिसको कह रहे हैं, वो मन यहाँ पे सेल्फ का ही एक पार्ट है. ठीक है. ठीक है, मैम तो सेल्फ को आप फिर क्या कहोगे? मतलब इनर कॉन्शियसनेस. इनर कॉन्शियसनेस, बिल्कुल, बल्कि हम इसको कॉन्शियसनेस भी नहीं कहते. कॉन्शियस एंटिटी है आपके अंदर, एक प्रेजेंस है, एक कॉन्शियस प्रेजेंस है आपके अंदर, दैट डायरेक्ट्स दीज फंक्शंस. वो तो मैम फिर सोल हो गई ना. हाँ, सोल ही आप उसको कह सकते हो एक तरीके से. लेकिन सोल को भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें सोल ही तो आपके अंदर कर रही है. तो सेल्फ कह दीजिए, आप उसको सोल कह दीजिए, एक ही चीज है. आप उसको कॉन्शियस एंटिटी कह दीजिए, या आप उसको सिंपल वे में आई भी बोल सकते हैं. ये सारी टर्म्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से कोई भी एक टर्म आ सकती है. ठीक है, आई इज अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है किसी में, तो आई इज, अब आप उसमें क्या लिखेंगे? सेल्फ. यस, कॉन्शियस एंटिटी, वो भी आपका आंसर हो सकता है. ठीक है, आई इज सोल, वो भी हो सकता है. ठीक है, तो आई, सेल्फ, सोल और कॉन्शियस एंटिटी, ये चारों एक ही चीज के नाम है. लेकिन जहां तक ब्रेन की हार्ट की बात है, हार्ट इज द पार्ट जिसको आप मन के अगर कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तब मन के अगर आप उसको मीनिंग में लेते हैं, अगर आप हार्ट को लेते हैं एक ऑर्गन के रूप में, देन इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी. बट इफ यू टेक हार्ट फॉर द मन, in that case it is part of the
self. Now, when we have understood the activities of the self and the body, activities of self और body आपको समझ में आ गई. Body की activities क्या हैं? Eating, walking, sleeping, crying, etc. लेकिन आपके ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये डायरेक्ट कहाँ से होती हैं? These are directed by the self. ठीक है, आप हर वक्त नहीं चल पाते, इसलिए वो टेम्परेरी हैं. हर वक्त आप खा नहीं सकते, वो टेम्परेरी हैं. लेकिन डिज़ायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, ये जितनी भी रिकॉग्नाइजिंग, फीलिंग, ड्रीमिंग, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर एंड दीज आर परफॉर्म्ड बाय सेल्फ. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, जो क्रेविंग होती है उसको आप कौन सी उसमें डालोगे कैटेगरी में? क्रेविंग फॉर व्हाट? अगर आपकी क्रेविंग हैप्पीनेस के लिए है, इन दैट इज इट इज द फंक्शन ऑफ द इट इज द नीड एंड फंक्शन ऑफ द सेल्फ. लेकिन अगर आपकी क्रेविंग किसी एक चीज को खाने के लिए है, अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी अगर उस वक्त है उसकी, तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन वो क्रेविंग एक्चुअली किसकी है? क्योंकि आपको वही पर्टिकुलर चीज खाने का अगर मन है, ठीक है, इन दैट केस इट इज द नीड एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ. आपको भूख लगी है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो सामने आता है आप वो खा लेंगे, सेल्फ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लेकिन अगर आपको भूख लगी और आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे भूख तो लगी है लेकिन मुझे ये नहीं खाना, खाना मुझे एक यही चीज़ है, मुझे इस वक्त सिर्फ समोसा ही खाना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट समोसा ही है. लेकिन आपको क्योंकि अच्छा वही लग रहा है उस वक्त, आपका मन उसको खाने का है, तो वो क्रेविंग आपकी किसी चीज़ के लिए है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ. क्योंकि आप जो इंजॉय करेगा वो कौन करेगा? वो तो सेल्फ करेगा. तो क्रेविंग को आप इस उसमें देखिए कि वो अगर सिर्फ जो आपकी अगर वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है सिर्फ, इन दैट केस इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. बट इफ इट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन, इफ इट इज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द सेल्फ, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्फ. आपको अगर सक्सेस की क्रेविंग है तो सेल्फ की, वो तो पर्टिकुलर सेल्फ की होगी फिर. Now, understanding the body as an instrument of self. हालांकि काफी हद तक आप लोग उसको समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इसको आपको बता देती हूँ. I am the conscious entity. जो सेल्फ है, सेल्फ इज कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी इज मटीरियल एंटिटी. बॉडी इज an instrument for self. It is the self who takes the decisions and it is the body that acts according to those decisions. Is it clear to you? Self Yes, is conscious conscious entity, but body is material entity. Body is the instrument of the self. It is the self that takes the decision and it is the body that acts accordingly. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है इससे, और आप लोग क्योंकि ऑफलाइन क्लास में चीज़ें हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर पाते हैं विद एग्जाम्पल्स, जो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज ठीक से समझ में नहीं आते. इसको आगे अगर ऑफलाइन क्लासेस का होता है तो अब हम इसको एक बार बीच में करके देख सकते हैं, इनको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं. यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देती हूँ. आप किसी भी चीज़ को उठा के देखिए, आपका बुक पढ़ने का मन है, ठीक है, आप खाली सिर्फ हम खाने तक लिमिटेड नहीं रहते यहाँ पर, आपका बुक पढ़ने का मन है. कौन पढ़ेगा आप उस बुक को? आईज सी द वर्ड्स, आईज सी द सेंटेंसेस. अगर आप बोल के पढ़ते हैं, योर माउथ इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है. जो आपका ब्रेन है, ब्रेन इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, लेकिन उस पढ़ने को एंजॉय कौन करता है? जो उस चीज को पढ़ने के बाद एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, वो किसको मिल रहा है?
सेल्फ हम सेल्फ को वो सेल्फ को मिलता है. एंड इट इज द सेल्फ दैट डिसाइड्स विच बुक यू वांट टू रीड. देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में तो आपको ठीक है, एक फिक्स्ड है कि आपको यही पढ़ना है. लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक है या आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो आप किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं? आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स में भी आप पर्टिकुलर छोटू पढ़ रहे हैं, लंबू मोटू है या जो भी है, अलग अलग होते हैं, पिंकी है या कुछ और है, जो भी, ठीक है. या आप सीरियल अगर आप देखते हैं, तो सीरियल में भी आप कॉमिक सीरियल्स अगर आप देखते हैं, या आप कोई गेम आप खेलते हैं, तो पर्टिकुलर कौन सा गेम आप खेलते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द सेल्फ, बिकॉज इट इज द सेल्फ दैट एंजॉयज. आप खेल रहे हैं, आप तो आपके हाथ उसमें इन्वॉल्व है. अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है. बट इट इज योर सेल्फ दैट गेट्स अ सेटिस्फैक्शन, और ये आपका सेल्फ ही है जो आपको डायरेक्ट करता है दैट यू हैव टू प्ले फुटबॉल. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर तो आप एक लाइन से सभी को एक ही गेम में लगा सकते हैं, एक ही स्पोर्ट्स में आप ले जा सकते थे सबको. तो ऐसा नहीं है. कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है, कुछ को पबजी पसंद है, किसी को कोई और वीडियो गेम पसंद है, किसी को कोई कॉमिक्स पसंद है, किसी को कोई दूसरा सीरियल पसंद है. ठीक है. किसी को हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना पसंद है, तो किसी को सी साइड पे जाना पसंद है. किसी को हिल स्टेशंस पसंद आते हैं, तो किसी को डेजर्ट पसंद आता है. तो ये सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज द सेल्फ दैट एंजॉयज एवरीथिंग. That's why decision maker is always the self. And जब तक इन दोनों के बीच में, यानी सेल्फ एंड बॉडी के बीच में वो कोऑर्डिनेशन चलता है, यू गेट हैप्पीनेस. लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ, या वो उस कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस होता है, you don't get happiness. Again, one example for the same, your body knows, assumes, recognizes that this particular type of lifestyle is not good for your body. लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं एंड यू फॉलो अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल. मैं ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात आपको कर रही हूँ कि आप देर तक सोते हैं, रात को आप देर तक जागते हैं, ठीक है, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं. योर सेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. क्योंकि उसका जो रिकग्निशन है, उसका अजम्पशन है, उसकी नोइंग है, वो अलग है. बट योर बॉडी इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली. रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज disharmony between the two, and ultimately your body will not be able to perform all the functions properly. Self will also be affected. लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है एंड बॉडी फॉलोज द इंस्ट्रक्शन set by the self, sent by the self, in that case there will be coordination, there will be harmony, and it will be better for both, and both will work in a proper way. आपकी सेल्फ मना कर रही है कि आपकी सर्दियों में आइसक्रीम खाना आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ. अभी मैंने फर्स्ट आपको बताया, आई एम द कॉन्शियस एंटिटी. सेकेंड इज I want to live with continuous happiness. Self wants to live with continuous happiness. लेकिन for body, physical facilities are required in a limited quantity and temporarily. Body की requirements temporary हैं, limited हैं, but self की requirement क्या है? Happiness, and that is desired in continuity. Third, my complete program is to understand and live in harmony at all 4 levels. जो सेल्फ है उसका अल्टीमेट प्रोग्राम क्या है? उसका कंप्लीट प्रोग्राम क्या है? उसका कंप्लीट प्रोग्राम है टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स. कौन से 4 लेवल्स हैं? विद द सेल्फ, विद द फैमिली, विद सोसाइटी एंड विद नेचर. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल टेक ऑन ट्यूसडे. ये हमारा यही है, हार्मनी विद सेल्फ, harmony with society, with family, society and nature. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नेचर वाला. और
सोसाइटी का, क्योंकि इसमें आपको सेल्फ का तो है ही, लेकिन उसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, नेचर से रिलेटेड एंड सोसाइटी वाले. सो the complete program of self is to live in harmony at all 4 levels of living and ensuring physical facilities for the body is only a small part of this program. जबकि हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है कि जितना ज़्यादा हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज होंगी उतना ही हमारी हैप्पीनेस होगी, उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे. जबकि सेल्फ का कहना क्या है, सेल्फ इज sure that the fulfillment of physical facilities for the body is only a small part of the complete program of self. Complete program क्या है? To live in harmony at all 4 levels. ठीक है, लेकिन हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है? For the fulfillment of the small part of this complete program, that is the fulfillment of physical activities only. और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. ठीक है, और ये जो स्मॉल पार्ट है वो है क्या? प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज. प्रोडक्शन यानी रिक्वायरमेंट, उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करके रखना, और तीसरा है राइट यूटिलाइजेशन. क्योंकि अगर हम उन फिजिकल फैसिलिटीज को सही यूटिलाइज नहीं करते, अगेन दे अफेक्ट अस एडवर्सली. कितने लोग हैं अभी जो आजकल कैलकुलेशन के लिए मतलब मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं? बहुत कम. आई थिंक 99% यूज कैलकुलेटर्स और मोबाइल फोन्स. ठीक है, दिस इज नॉट द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज. ओके, देन आई एम द यस क्या एक छोटा सा एग्जांपल था बेटा कि राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज. हमें एक फिजिकल फैसिलिटी मिली कैलकुलेटर की, तो हमने क्या किया? हमने मेंटल कैलकुलेशन बिल्कुल बंद कर दिया. ठीक है, हाँ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो गेम्स हमें एक फिजिकल फैसिलिटी मिली कि हम घर पे बैठ के थोड़ा अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं. हमने क्या किया? हमने बाहर जो आउटडोर एक्टिविटीज हमने उनको बिल्कुल बंद कर दिया. सो दिस इज नॉट द राइट यूटिलाइजेशन. जो सेल्फ का प्रोग्राम है, सेल्फ का प्रोग्राम है टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स, लेकिन उसके साथ जो स्मॉल प्रोग्राम है, स्मॉल प्रोग्राम इज द प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज. हर्ष, डू यू वांट टू से समथिंग बेटा? मैम अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मतलब जो पेपर में आने हैं, मतलब कुछ जो हम पढ़ सकते हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस तो अभी आपको असाइनमेंट्स में भेजे हैं. ठीक है, गूगल क्लासरूम पे भेजे हुए हैं. उसके अलावा मैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको कल या तो आज शाम तक अगर मेरे पास घर पे होंगे, अदरवाइज मैं आपको कल उनकी पिक आपको मैं उसमें लेके गूगल क्लासरूम पे या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको भेज दूंगी. यू विल गेट एन आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. ठीक है, ओके. तो अब से पहले जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो भी उसमें इससे आपको उसका आइडिया मिल जाएगा. जनरली क्वेश्चंस वही होते हैं, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स. यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका जनरली फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस होता है, और उसके बाद कुछ आपके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. ठीक है, what are the needs of the body, what are the needs of the self. तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर्स जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी. मैम एक बार सिलेबस भी बता दो क्या क्या आएगा. बेटा फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं जिसमें फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट यूनिट वैल्यू एजुकेशन, कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, देन बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस. In basic human aspirations, mainly we have 2, happiness and prosperity. Now, methods to fulfill these basic human aspirations.
उसके बाद आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके दो चीजें और थी जो वैल्यू एजुकेशन में ही आती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस. Then in second unit, this first topic is there, human being as the coexistence of self and body. And remaining topics are harmony at these four levels. Harmony at the level of self, harmony in family, harmony in society, and harmony in nature. Okay? So living in harmony at these four levels. These are the main topics for this first sessional. Okay? थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैम जो आपने पीपीटी शेयर करी है वो यूनिट 1 है, मतलब जो आपने कल शेयर हाँ, वो मैंने आपको जो भी शेयर किया है दैट इज यूनिट 1. ओके मैम. थैंक यू. ठीक है. सो ये आपको इसका पता चल गया. नाउ आई एम द सीयर, आई सी थ्रू आईज, द आईज डोंट सी देमसेल्व्स. ठीक है. आई सी वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो सेल्फ यूज करते हैं. आई एम द डूअर, self is the doer, self selects to do and use the hands or feet or any other part of the body to perform that function. And ultimately, I am the enjoyer. Who enjoys? It is self who enjoys. Yes, Astha? I have a doubt, like whatever we feel, whatever we wish is just because of self, ourself, right? Yes. Ma'am, then the self is always right. Like you told that when our body is not like we want to eat ice cream, but this is not good for our health, but we eat and our self do not allow to eat that. Then self is always right, ma'am. Is self Yes, is always right? yes, beta. जो हमारी inner conscious है, ठीक है, self is always right. Self is always right because self directs us, it guides us to do only those things which are beneficial for us, which are beneficial for our body, which are beneficial for our consciousness, which are beneficial for our happiness. कभी भी किसी की इनर कॉन्शियस या उसकी सेल्फ कभी भी उसको गलत के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकती. इट इज अवर बॉडी, इट इज अवर ब्रेन. हमारा ब्रेन है. मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्फ एंड ब्रेन, सेल्फ से सिग्नल ब्रेन तक आता है. ये ब्रेन है जो मैनिपुलेट कर देता है फिर चीजों को. ठीक है. ब्रेन अवॉइड्स द सिग्नल्स, डायरेक्शन सेंड बाय द सेल्फ एंड एक्सेप्ट्स द सिग्नल्स ऑफ द बॉडी. वो ब्रेन डोमिनेट जब करने लगता है प्रॉब्लम तब शुरू होती है. लेकिन जब तक ब्रेन आपकी कॉन्शियस को या आपके सेल्फ को फॉलो कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती. यस हर्षित, इसलिए सेल्फ इज ऑलवेज राइट. मैम मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अपनी सेल्फ होती है ना वो कभी गलत नहीं होती हमारे लिए. Yes, बट जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं ना वो जज करते हैं कि हमारी सेल्फ गलत है नहीं गलत है. अपनी सेल्फ तो ठीक ही होती है. नहीं बेटा, दूसरा कोई जज नहीं करता. दूसरे आपको मिसगाइड जरूर कर सकते हैं. Harsh, are you there? मैम ही Yes, ma'am. एंटर नहीं करा उसने. हर्षित. Okay, Harshit was asking. यस मैम. Others judge us according to their perception. ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन है. सबकी अपनी अपनी अलग एनवायरनमेंट है, अपनी अलग उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अलग अलग सबकी कॉन्शियस है. सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन परसेप्शन, जो उनका परसेप्शन है वो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, उनके एनवायरनमेंट के ऊपर, उनके रिसोर्सेज के ऊपर, उनके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है. दैट्स व्हाई दे जज यू अकॉर्डिंग टू देयर ओन परसेप्शन, बट यू कैन नॉट से दैट यू आर रॉन्ग.
they say that you are wrong, but they should not say, because whatever your conscience is telling you, that is right for your betterment. मैम फिर तो एथिक्स पे बात आ जाती है ना, क्यों? क्योंकि मैम जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दूं तो मैम जैसे सपोज जो गैंगस्टर हैं या गुंडे वगैरह वो अपने हिसाब से तो ठीक कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो तो उन्हें देवता मानते हैं, बट हमारे हिसाब से तो वो लोग गलत कर रहे हैं ना, या जो टेररिस्ट है या देखो कोई दूसरी कम्युनिटी। देखो लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि अपना अपना वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग उनको देवता मानते हैं, अगर आप उनसे भी अलग, अगर आप ये पूछेंगे कि ठीक है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए किसी और इनोसेंट को अगर वो हार्म कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? दे विल नेवर से यस। इवन द पर्सन हु इज डूइंग रॉन्ग, अगर आप उससे भी ये पूछें कि उसकी इनर सेल्फ उसको क्या डायरेक्ट करती है, वो भी ये कहेगा कि नो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना, बट आई हैव टू डू दिस, ठीक है। तो इनर सेल्फ भी उनको भी इनर सेल्फ उनको गाइड करती है, डायरेक्ट करती है नॉट टू डू समथिंग रॉन्ग, बट दे हैव टू डू बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज दे हैव टू फुलफिल सम ऑफ द नीड्स जो किसी और तरीके से पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि अच्छा किसी ने किसी को रिवेंज लेने के लिए ये कर दिया, या उसको मार दिया, उसका नुकसान कर दिया, कुछ और कर दिया। वो भी क्यों है? क्योंकि उसकी जो सेल्फ है वो उसको कभी उसको डायरेक्ट करेगी नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो सेल्फ उसको करेगी कि नहीं करना है, बट जो ब्रेन है वो ब्रेन वहां पर उन सिग्नल्स को तो सप्रेस कर देता है, और जो दूसरे जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वहां वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसको कहाँ पर मिलेगा? व्हेन द पर्सन इज एबल टू सेटिस्फाई हिज इमोशंस। तो जहाँ इमोशंस बहुत ज्यादा ओवर पार डोमिनेट करने लगते हैं, वहां प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, सो the small part of this topic is there, जो मैं अभी आपको फटाफट इसको कंप्लीट करा देती हूँ। मैम क्लास काफी लंबी हो गई है, अगली में कर लें? बेटा ये छोटा सा है, इसको कर लेते हैं, तो अगली नेक्स्ट क्लास में फिर हमें सिर्फ हार्मनी वाले टॉपिक्स बचेंगे हमारे। छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें सेल्फ रिसीव सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी, जो मैंने अभी आपको पहले हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझा देती हूँ। सेल्फ रिसीव्स sensations from the body and then begins to desire or begins to think about it. For example, if we see a car, we like that, and when we like that car, we begin to think about getting that car. उस चीज के बारे, कोई भी कार है, कुछ और चीज है, कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, हमने बाहर से देखा, इसको हम कहते हैं फ्रॉम इनसाइड टू इनसाइड, यानी आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड यानी जो बॉडी से अंदर की तरफ सिग्नल में या मैसेज जाता है, वो कैसे जाता है कि आपने बाहर कोई चीज देखी, आपने कार देखा, एंड योर सेल्फ बिगिंस टू थिंक अबाउट दैट कार, दैट की बहुत अच्छी कार है और आपको वो लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, बेस्ड ऑन दीज थॉट्स यू सेट ए डिजायर। अब आपकी डिजायर बन जाती है कि मुझे ये कार लेनी ही लेनी है। पहले तो आपके पास एक थॉट आ गया कि ये कार अच्छी है, अगर मैं ये कार ले लूँ तो मेरा थोड़ा स्टेटस भी बढ़ जाएगा, या ये कंफर्ट मुझे मिल जाएगा, या मैं अपने फैमिली के साथ आराम से घूमने जा सकता हूँ, या ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा, कम्यूट करना ईजी हो जाएगा। बेस्ड ऑन दीज थॉट्स यू सेट ए डिजायर टू गेट दैट कार। आपका एक टारगेट बन जाता है कि आपको अब ये कार
लेनी ही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या, आपका जो सिलेक्शन है, ये आपका सिलेक्शन, इट लीड्स टू थॉट्स एंड थॉट्स लीड टू डिजायर। ये तो होता है आपका प्रोसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब इसका रिवर्स भी हो जाता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड, आपने सबसे पहले आपने एक आपके अंदर एक डिजायर आती है कि एक घर में कार, मेरे पास एक कार तो होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर आपने उस डिजायर के बाद आप अपने थॉट्स को डेवलप करना शुरू करते हैं कि ठीक है, मुझे कार लेनी तो है। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर आ गई है कि मुझे कार लेनी है। कौन सी कार, मतलब क्या क्या उस कार से होगा, आपके वो थॉट्स डेवलप होने लगते हैं कि ये ठीक है, मेरे पास कार होगी तो ये सब होगा, स्टेटस होगा, कंफर्ट मिल जाएगा, कम्यूट करना इजी होगा, रिवर्स वे में। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दीज थॉट्स, यू कम टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन, which model, which type of car, size, color, आप वो सारी चीज़ों के बारे में वो सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दोनों का, सेल्फ एंड बॉडी के बीच में, ये दोनों तरफ से चलता है, आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। और इसका एक प्रॉपर ग्राफ है जो मैं आपको नोट्स में शेयर कर दूंगी। सिलेक्शन लीड्स टू थॉट्स, थॉट्स लीड टू डिजायर्स, and desires leads to thoughts, and again thoughts leads to selection। तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें सिलेक्शन से, ये सिलेक्शन पर ही जाकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये दोनों चीजें हमारे थॉट्स, डिजायर्स एंड सिलेक्शन और एक्सपेक्टेशंस, ये जब हमारे तीनों कंबाइंड हैं, दैट बिकम्स अवर इमेजिनेशन। अब जो सबसे बड़ी इसमें चीज़ आती है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर हमारी ये इमेजिनेशन और हमारे थॉट्स, हमारे डिज़ायर्स, ये दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं, प्री कंडीशनिंग एंड सेंसेशंस। अगर ये इन दोनों के ऊपर बेस्ड हैं, प्री कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड हैं या सेंसेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, देयर मे बी प्रॉब्लम। अगर हम उन चीज़ों को अचीव भी कर लेते हैं तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। बट इफ our desires, our thoughts, and our expectations, our selection is based on right understanding, there will be no problem. Because if these are based on preconditioning, जो हमारा कंडक्ट है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिसीजन है, हमारे डिसीजन ही डेफिनेट नहीं होंगे। प्रीकंडीशनिंग कहती है कि अगर आपके पास एक कार है तो आपका सोसाइटी में स्टेटस आपका बहुत बड़ा है, या आपका घर अगर इतना बड़ा है तो आपके पास स्टेटस है, या अगर आप इंजीनियर बन गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हैं, तभी आपका स्टेटस अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बेकार हैं, तब आपका सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये प्री कंडीशनिंग। ठीक है, अब आपकी प्री कंडीशनिंग तो ये कहती है दैट यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर, लेकिन आपकी जो इनर कॉन्शियस है वो कहती है कि नहीं, आपका जो इंटरेस्ट है, आपको हैप्पीनेस किससे मिलती है, इन डूइंग समथिंग एल्स, आपको डॉक्टर बनना है। लेकिन आपकी फैमिली में या आपकी जो प्री कंडीशनिंग है वो इसी चीज से तैयार हुई है कि आपको, अगर आप इंजीनियर नहीं बने तो आप बेकार हैं। नाउ इंस्टेबिलिटी इज देयर, आप ना तो इंजीनियरिंग ठीक से कर पा रहे हैं और डॉक्टर आप बन नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी। आप इंजीनियर बन भी जाते हैं तो भी आप उस काम को मन से नहीं कर पा रहे। इंस्टेबिलिटी लीड्स टू अनहैप्पीनेस। ठीक है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है to become an engineer, that is based on preconditioning. But if you think that you have the instinct and you have the capabilities and you have the desire to become an engineer, आपका जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियर बनने में ही है, उस केस में क्या होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग, and you will achieve a lot, you will achieve happiness, you will achieve success after becoming an engineer. सेकेंड इज सेंसेशंस। अगर ये हमारा सेंसेशंस के ऊपर बेस्ड है, अगर हमारे थॉट्स और हमारे डिजायर्स, सेंसेशंस कोई ऐसी चीज जो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है, उस केस में भी कुछ हद तक डिससेटिस्फैक्शन में अकर। बट इफ दिस इज बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग, इन दैट केस देयर विल बी
नो डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज लीड्स अस टुवर्ड्स आवर डिजायर। राइट अंडरस्टैंडिंग से हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, जो मैं पहले आपको कई बार बता चुकी हूँ, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। And when we achieve that, we get satisfaction because all these questions are answered. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, in that case, conflicts and contradictions will be there, क्योंकि प्री-कंडीशनिंग डिजायर्स हैं। अगर वो होगा तो आपकी एस्पिरेशंस वो वेवरिंग है, क्योंकि पहले तो आप यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है, आपको इंजीनियर बनना है कि आपको डॉक्टर बनना है। तो वेवरिंग एस्पिरेशंस, कभी आपका मन करेगा कि ये बन जाता हूँ, कभी प्री कंडीशनिंग ओवर पार हो जाती है, डोमिनेट करने लगती है, तो आपको लगता है नहीं इंजीनियरिंग ही करना ठीक है। फिर आपको लगता है लेकिन नहीं, मुझे मन नहीं है मेरा इंजीनियर बनने का, तो आपकी वेवरिंग एस्पिरेशंस। व्हेन वेवरिंग एस्पिरेशंस आर देयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप इंजीनियरिंग कर तो रहे हैं बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर। आप उसको छोड़ के डॉक्टर तो बनने डॉक्टर की तरफ आप चले जाते हैं, आप एमबीबीएस करने लगते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कॉन्फिडेंस वो नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या स्टेटस बढ़ेगा, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि प्री कंडीशनिंग क्या है, ओनली इंजीनियर्स गेट रेस्पेक्ट, दे गेट मनी, दे हैव अ स्टेटस। So when this lack of confidence is there, it leads to unhappiness and conflicts. And when unhappiness is there, lack of qualitative improvement in us. तो हमारे अंदर qualitative improvement नहीं होता, क्योंकि conflict है, unhappiness है। आप अपने आप को improve करना भी चाह रहे हैं तो वो qualitative improvement नहीं हो पाता है। आप जबरदस्ती ठीक है कुछ कर रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हैं, नेक्स्ट डिग्री आप ले रहे हैं, बट दैट इज नॉट क्वालिटेटिव। एंड व्हेन दिस सिचुएशन इज देयर, यू कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन। फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो है ठीक है, आप उसके आगे कुछ और अच्छा नहीं कर सकते, यू एक्सेप्ट दैट थिंग इन ए नेगेटिव वे। रीजन वॉज ओनली वन, प्री कंडीशनिंग। लेकिन उसको अगर आप रिवर्स कर देते हैं, प्री कंडीशनिंग को हटा के राइट अंडरस्टैंडिंग आप फॉलो करते हैं, यू मूव टुवर्ड्स हैप्पीनेस, इट लीड्स यू टुवर्ड्स satisfaction, success and ultimate happiness. So that's all for the day. In next class, we'll start with harmony of self. And I hope we'll be able to complete this harmony at all 4 levels in next lecture only, क्योंकि हार्मनी ऑफ सेल्फ अगर आपको एक बार में समझ में आए तो उसके बाद फैमिली एंड सोसाइटी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नेचर का ज़रूर थोड़ा सा एक कुछ उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत लेंदी या मुश्किल वो भी नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट नेचर, द मोस्ट ईजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो जल्दी से बताइए। मैम एक बार मोस्ट इजी टॉपिक बताना, कौन सा बोला था आपने? नेचर, हार्मनी इन नेचर। ओके ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो खुद के लिए है, हार्मनी ऑफ सेल्फ। ठीक है, या हार्मनी विद सेल्फ, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको इसे लगता है क्योंकि खुद को समझना सबसे मुश्किल होता है इस दुनिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी हार्मनी विद सेल्फ and harmony in family, society and nature. The most easy one is harmony in nature. बाकी आप लोगों ने देख लिया है, असाइनमेंट्स आप लोगों ने देख लिए हैं? यस मैम। अब यस बोलो बेटा। अभी नहीं देखे थे मैम। ठीक है, आप लोग गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट में भेज चुकी हूँ, और जहाँ तक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको भेज दूंगी। साथ साथ इस बार का क्या फॉर्मेट रहेगा, हालांकि फॉर्मेट वही है जो पहले रहता था, फिर भी इनकेस कोई चेंज होगा तो मैं आपको कल वो इन्फॉर्म कर दूंगी।
ठीक है, अभी तक का जो फॉर्मेट है वो यही है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. Besides, सबमिट करना yes, है अभी. मैम क्या कैन यू एक्सटेंड द डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन? बेटा, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको कब का 14 दी हुई है शायद. मैम वी हैव आवर एग्जाम फ्रॉम 15th. यस हाँ, मैम. तो इसीलिए तो दिए कि आपकी तैयारी भी हो जाएगी ना, उसी में आप जब पढ़ेंगे तभी आप साथ साथ आंसर्स उसके लिख रहे हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए मैम भी है. एक्चुअली मैम हमारी जो प्रॉक्टर है चिन्मय मैम, कल हमारी क्लास में उनसे बात करी थी. सो शी सेड दैट कि जब हमारे पेपर जाएंगे हम असाइनमेंट्स, वाइवास या प्रैक्टिकल फाइल्स सब उसके बाद ही करें. ठीक है, अगर आप मैंने तो इसलिए दिया था क्योंकि अगर आप अभी कर लेते तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप हैं, आप तैयार कर रहे हैं, नोट्स आप बना रहे हैं, तो वो आपको इजीली वहाँ से उन्हीं चीज़ों को आप असाइनमेंट में सबमिट कर पाएंगे. तो अगर ऐसा है कि आपको एग्जाम्स के बाद अगर सबमिट करना है तो एग्जाम्स के बाद कर दीजिए. ठीक है, हाँ आई विल चेंज द डेट. मैं उसको रीशेड्यूल कर दूंगी, उसको जो उसका डेट है, डेट ऑफ सबमिशन, मैं उसकी वो चेंज कर दूंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके मैम, थैंक यू सो मच. ठीक है, ये आपका एग्जाम 20 को है ना? यस यस मैम. यस ठीक है, मैम. तो हाँ, आप उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट नेक्स्ट 2 असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट ऑल्सो. प्रोजेक्ट के लिए भी हम उसके बाद ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, ग्रुप आपके बनाने हैं, आपको जो भी टॉपिक्स आपको असाइन करने हैं वो सब हम आपके सेशंस के बाद ही वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. और आपकी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म भी करनी है, प्लस अगर ऑफलाइन क्लासेस उसके बाद शुरू हो जाती हैं तो फिर इजी है, लेकिन अगर नहीं हो पाती हैं तो फिर आपको पहले मतलब खुद ही आपको उनको घर पे करना पड़ेगा. मैम ग्रुप आप बनाओगे या फिर हमें खुद बनाना होगा? बेटा ये तो डिपेंड करता है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो आप लोगों का आपस में किस तरह के, अगर आपके ग्रुप अपने बन जाते हैं तो अच्छी बात है. ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि रोल नंबर वाइज आप लेंगे या आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके आप बनाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी आपके बहुत ज़्यादा ये इंटरेक्शन बाकी लोगों से है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा है. पर्सनली हो तो आप जाती है एक दो मैम. को हो तो जाता है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि फ्रेंडशिप किसके साथ कितनी अच्छी है आपकी अभी. मैम कोई फ्रेंड नहीं है मेरा तो. आपका कोई नहीं है? अरे प्रियांश भाई ऐसे मत ऐसे बोल दिल यार, मत तोड़ यार, ऐसे मत तोड़. ऐसे मत बोल यार. प्रियांश ये क्या बोल गया तू? तेरे साथ मैं ही था, याद है? भाई तू तो धोखेबाज निकला यार. प्रियांश, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि कोई फ्रेंड नहीं है बेटा? अरे मैं मजाक कर रहा था. मजाक कर रहा है मैम, हम जानते हैं. मैम इसका कोई नहीं है फ्रेंड, ए, हम ही मैम ऐसी है. मैम इसके सब हैं फ्रेंड्स. हो जाता है मैम, सब दोस्त मैम इसके. चलिए ठीक है. मैम बस एक बात बता दो कि जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें बच्चे कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 5, 4 to 5. मैक्सिमम 4 to 5. ठीक है, Ma'am? 4 to 5 will be there in it. Yes. मैम आई हैव अ डाउट, लाइक मैम सेल्फ और मन में क्या फर्क है? जैसे आपने कहा कि सेल्फ हमें हमेशा सही बताता है, पर हम हमेशा अपनी मन की सुनते हैं, लाइक हम क्या फील कर रहे हैं, कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं हमें ये चाहिए या हमें हमें ये करना है, लेकिन मैम सेल्फ कभी फील नहीं किया, लाइक कभी सुनाई नहीं देता, बेटा लाइक सेल्फ ऐसा नहीं, कुछ। मन ही एक तरीके, मैंने अभी बताया था शायद, आपने तब उसको ध्यान नहीं दिया था. मन इज द पार्ट ऑफ सेल्फ ओनली. मैम दिया था, बट मन कभी कभी गलत भी तो होता है मैम, कभी कभी सेल्फिश होके हाँ, सोचते हैं क्योंकि या जो कभी मन कभी है, बहुत मन में, हाँ, मन इसलिए थोड़ा सा मन गलत नहीं होता. ठीक है, वो सेल्फिश होके, आपने सेल्फिश होके अगर आप सोचते हैं तो वो आपका ब्रेन काम कर रहा होता है तब. मन कभी सेल्फिश नहीं सोचता, क्योंकि मन आपकी सेल्फ का पार्ट है, ब्रेन आपकी बॉडी का पार्ट है, और ब्रेन हमेशा कैलकुलेटिव होता है. वो सेल्फिश आप कब होते हैं? व्हेन यू आर गेटिंग कैलकुलेटिव. आप जब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा नहीं है, तो दैट फंक्शन इज परफॉर्म बाय ब्रेन ओनली.
तो मन कैलकुलेटिव नहीं होता, वो मन कभी सेल्फिश नहीं होता। मन आपका सेल्फ का पार्ट है, वो हमेशा आपको अच्छे के लिए ही। हाँ, लेकिन कई बार आप होता है कि आप इमोशंस में जब बहुत ज़्यादा यस मैम। ओवरवेल्म हो जाते हैं इमोशन से, उस केस में आप वो सेल्फिश नहीं होता, आप इमोशंस में अगर आप उसी फ्लो में चले जाते हैं, क्योंकि मन का जो मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, वो इमोशंस हैं। तो यस वहाँ कई मैम, बार कभी आपका कभी आपकी हाँ, तो कई बार आपकी जो डिसीज़न्स हैं, वो आपके इमोशन से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लॉजिक या जो बाकी अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी-सी वहाँ पे सेकेंडरी बन जाती है। लेकिन उस केस में भी आप गलत नहीं हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस। तो मैम आपका जो बैलेंस मन है नहीं रहता किसी भी चीज। कभी होता है ना कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, कभी हम बहुत ज्यादा हाईली मतलब वरीड हो जाते हैं, हमें फिर उसके लाइक सेल्फ है तो सेल्फ हमेशा राइट होता है, तो वो तो हमें ये कहना मतलब अंदर से ये होना चाहिए कि हमें उस सिचुएशन से निकलना है। लेकिन मैम हमारे अंदर जो हमारा मन है वो तो ऐसा हुँ। नहीं, मतलब वो तो बिल्कुल उस स्टेज हाँ, से तो वो आपका निकलना ही वो नहीं चाहता। हाँ, वो आपका इमोशन वाला पार्ट है ना, वो आपको निकलने नहीं देता है। तो यू हैव टू बैलेंस दैट। उसी चीज़ को तो आपको बैलेंस करना है कि आपके इमोशंस को आपको उतना अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देना है कि आपके जो राइट डिसीजंस हैं वो उससे अफेक्ट होने लगें। तो मन एक कोई अलग चीज़ नहीं है, मन इज़ द पार्ट ऑफ सेल्फ ओनली। बट नॉट लेकिन द उसका जो कंप्लीट सेल्फ, राइट? नहीं, हाँ, वो कंप्लीट सेल्फ नहीं है, मन कंप्लीट सेल्फ नहीं है। ओके ठीक मैम, है? थैंक यू। जे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ब्रेन आपकी बॉडी का पार्ट है, बट वो कंप्लीट बॉडी नहीं है और वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं, क्योंकि ब्रेन आपका एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है टू कैरी आउट द सॉरी टू ट्रांसमिट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द बॉडी पार्ट्स टू कैरी आउट दोज थिंग्स, दोज एक्टिविटीज। ठीक है? अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो आप लोगों को करनी है। आर यू रेडी टू लिसन? यस मैम। मैम प्लीज अभी मैम बहुत हाँ, लंबी हो गई क्लास। नहीं, वो आपको करना है। यस मैम, मैम ठीक है? थक खुद गए मैम। अभी नहीं करना है, बाद में करना है। मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी घर के भी काम करने हैं भी सारे। ठीक है? मैम तो बाद में बता देना। नई एक्टिविटी तो मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे मैम बहुत बता शुरू में दीजिए, आप बतानी बता थी, भूल गई थी मैं बता बताना। दो मैम, भूल बता गई दो। थी, आपकी क्लास ही बहुत कम होती है आपकी। लास्ट ईयर तक 2 लेक्चर्स होते थे तो ईज़ी हो जाता था। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आपको एक घर में एक थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अलग बैठना है। ठीक है? यू हैव टू सिट अलोन इन अ पीसफुल प्लेस। क्लोज योर आईज़। मैम ये तो डेली ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ डीपली। ठीक है? थोड़ी देर के लिए आपको डीप ब्रेथ्स आपको लेनी है। उसके बाद यू हैव टू रिकॉल द मोमेंट्स व्हेन यू वर हैप्पी। ठीक है? यू हैव टू रिकॉल ऑल द मोमेंट्स सिंस योर चाइल्डहुड व्हेन यू वर हैप्पी। यू हैव टू रिकॉल द मोमेंट्स व्हेन यू वर सैड। जब बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे या बहुत ज़्यादा आप खुश हुए थे, यू हैव टू रिकॉल ऑल दोज मोमेंट्स। ठीक है? इंसिडेंट्स जो भी था, अचीवमेंट्स हो सकते हैं आपके कि आप किसी चीज़ को आपको कोई आपने अचीव किया, आपको कोई एप्रिसिएशन मिला, कोई भी चीज़, जब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे या बहुत ज़्यादा आप दुखी हुए थे। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक करना। उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जब आप खुश हुए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप दूसरे की सक्सेस पर खुश हुए, और दूसरा कितनी बार आप दूसरे के नुकसान पर या उसके फेलियर पर आप खुश हुए हैं, एंड वाइस वर्सा, कि दूसरे की सक्सेस पर आप दुखी हुए या दूसरे के फेलियर पर आप दुखी हुए। उसके बाद आज अगर आप अपने आप को उसी सिचुएशन में देखते हैं, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन द सेम सिचुएशन एट प्रेजेंट। वहाँ आपको अपने आप को कंपेयर करना है उस टाइम से और इस टाइम से। क्या आपके स्टेट ऑफ इमोशंस अब हैं? क्या आपके स्टेट ऑफ इमोशंस तब थे? वर यू राइट एट दैट टाइम और आर यू राइट एट प्रेजेंट?
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उन मोमेंट्स को रिकॉल करना है, उस टाइम को रिकॉल करना है व्हेन यू वर हैप्पी, व्हेन यू वर सैड। फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं वो मोमेंट्स जब आप किसी दूसरे के लिए दुखी या दूसरे के लिए आप खुश हुए थे। कितनी बार ऐसा हो कि आपका फ्रेंड फेल हुआ होगा और आप खुश हुए होंगे? थ्री इडियट्स देखी है ना? हर बार हर बार? मैम हाँ हर बार होते हैं ना, वो भी फेल हम भी फेल। नहीं नहीं No, मैम वो आप- अपना दोस्त फर्स्ट आता है तो दुख होता है ना। हाँ वही मैंने कहा ना, थ्री इडियट्स देखिए ना, थ्री इडियट्स में वो यही तो कहता है। Yes, ma'am. हाँ, तो आपको वो सारे, वो खाली फेल होने का नहीं है कि आप कब अपनी सक्सेस पर खुश हुए, कब आप दूसरे की अपने फेल होने के बाद भी दूसरे की सक्सेस पर आप खुश हुए हैं, या दूसरे की सक्सेस पर आप परेशान हुए, आप भी सक्सेसफुल थे लेकिन दूसरा सक्सेसफुल हुआ तो आप परेशान हुए, और अब के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या उन चीज़ों को आप अभी भी एज इट इज लेंगे या अभी कोई चेंज है? वो ज़रूरी नहीं है आपका फ्रेंड हो, आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका कज़न हो सकता है कि ठीक है उसको कोई चीज़ अच्छी मिल गई, या उसने किसी चीज़ में कुछ अचीव किया, उसने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया तो आपको अच्छा लगा या आपको खराब लगा। कोई भी हो सकता है वो, ऐसा नहीं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मैम छोटे ठीक है? भाई के साथ तो बहुत होता है। हाँ, वो सबके साथ होता है। लेकिन क्या आज की सिचुएशन में आज आप, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, तो क्या अभी भी आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स सेम होगा? मैं ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? रिस्पॉन्स इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव मैनर एंड रिएक्शन में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। रिएक्शन आपका सडन होता है, रिस्पॉन्स आपका थॉटफुल होता है। तो आज के टाइम में आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या होगा? हो सकता है तब आपने रिएक्ट किया हो, लेकिन आज अगर आप उस चीज़ को सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अब आप रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? तो ये एक्टिविटीज़ जनरली हम क्लास में ही करते हैं, सारे बच्चे वहीं बैठकर करते हैं और बहुत एक अच्छे एनवायरनमेंट में इसको करते हैं। फिर शेयर भी करते हैं अपनी अपनी चीज़ों को, फ्रीली रिलैक्स भी फील करते हैं, जो कुछ कभी गलत फील किया होगा उसको भी बाहर कर देते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। बट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डू इट इन क्लास, तो आप इसको खुद अकेले आराम से बैठ के कर सकते हैं, एंड आफ्टर योर सेशनल्स विल डिस्कस दिस। ठीक है? और अगर तब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम इसको आराम से क्लास में डिस्कस करेंगे एंड विल गो अहेड विद अदर एक्टिविटीज। ठीक है? ओके मैम। So that's all for the day. Thank you. Thank you for being so cooperative. क्योंकि थोड़ा सा आज नेट का भी प्रॉब्लम शुरू में रहा, और लैपटॉप का तो कुछ हो ही गया है, उसको तो अभी देखती हूँ। So see you in Thank you, next ma'am. class on Tuesday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Thank beta. Take care of yourself.